05H. AL is equal to AL is equal to 05H. 05H। तो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये हो गया। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है कि मुझे ऐड करना है। आई वांट टू ऐड some content into the content of AL, right? Of course, both the content is now added with each other, and that will form a result, and that must be a, we can say the number is a 8-bit number. Both the numbers are 8-bit numbers, so you can add both 8-bit numbers with each other. So now for addition purpose, we have a second instruction in your instruction set, that is ADD, add. Right? What it does, it added the content of source to destination, and where the result will be produced, the result is in destination. Result is in destination. Okay, so what we are going to say, syntax of this instruction, ADD, add, यहाँ पे आएगा destination, यहाँ पे आएगा source। और अब हमारे पास सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्म होगा, ADD AL, 05H। After the execution of this instruction, AL is equal to what? AL is equal to what? What is the value of AL after the execution of this instruction? After the execution of this instruction, the value of AL is equal to 5. But after the execution of this instruction, what is the value of AL now? Yes, who can tell the value of AL now? Akanksha? Yes, Akanksha? Yes. What is the value of AL now? What is the value of AL now? Yes, yes. 10H. It is in hexadecimal format, beta. So you have to write it as a 0AH. Understood? Yes, sir. 0AH। अब बहुत सारे लोगों को मन में ख्याल आया होगा कि सर ने इतने दो इंस्ट्रक्शंस बताए, दो इंस्ट्रक्शंस में एडिशन हो गई, तो ये एडिशन कैसे हुई है, या हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो यस, हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स ही कंसीडर करेंगे, या वो नॉर्मल मैथमेटिक्स ही है, सिर्फ आप वो असेंबली लैंग्वेज में परफॉर्म कर रहे हो। अब अभी सी सीख रहे हो सभी? यस सर। हाँ, तो सी में जब आप किसी दो नंबर को ऐड करना चाहते हो तो क्या करते हो? सिंपल, ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, दूसरा बी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तीसरा सी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, बराबर है? यस सर। मैं अब क्या करूंगा, ए को वैल्यू डालूंगा 05H, बी को भी वैल्यू में पुट करूंगा 05H, ओके, और सी को मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा। अगर आप देना चाहते हो तो 0 दे सकते हो। अब मैं कर रहा हूं a प्लस बी, तो व्हाट विल बी द आंसर? c इज इक्वल टू a प्लस बी, व्हाट विल बी द आंसर? 0AH.
0AH in the form of hexadecimal, but we are not writing now here hexadecimal. So what is the value of C? 10H. 10H. 0 10H. 10. 10. That is 10. Decimal 10. If we are talking about C, C is equal to 10. This is in the form of your regular mathematics, right? That you are Yes, sir. performed with the C language. You can do this particular mathematics or this operation like this. A is equal to 0, 5. Now C is equal to 0. Okay, like that way. C is equal to A plus 0, 5. So what will be the answer of C? What will be the answer of C? 10. 10. How we are calculated? How we are calculated? सर एक की वैल्यू ऊपर दी वाली एक की वैल्यू मैंने वेरिएबल में स्टोर की, दूसरी वैल्यू में जो डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, राइट? एक Yes, की sir. वैल्यू मैंने वेरिएबल में स्टोर की, दूसरी वैल्यू में डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। और जब डायरेक्टली ऐड करने की बात आती है तो इसी ऑपरेशन को या इसी फॉर्मेट को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। हम क्या कहते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या कहते हैं हम? Immediate addressing mode. तो अब देखो कि मैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में मेरे दो इंस्ट्रक्शन मूव और ऐड ये यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा। तो सिंपल, फर्स्ट लाइन आपको लिखना है मूव AL, 05H। दूसरा लाइन लिखना है ADD AL, 05H। और तीसरा लाइन लिखना है HLT माने स्टॉप। इसका मीनिंग क्या आएगा? 05H added into the content of AL, result is in AL। तो आपको जब कभी भी रिजल्ट देखना है तो AL की वैल्यू देखनी पड़ेगी, राइट? मतलब AL में जो प्रेजेंट है वो वैल्यू आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट ऐसे लिखना है, रिजल्ट यहां पे, और इसका मीनिंग आएगा 05H is moved into the content of AL. Initially AL does not having any value, but after the execution of this instruction AL will contain 05 and we are adding 05 into the 05. The result will be 0AH that will be present in AL after the execution of this instruction, and this instruction is compulsory to write after the end of the program, that is HLT माने halt माने stop। Understood? यस सर। ये प्रोग्राम समझ में आया सभी को? ये प्रोग्राम समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मैं एक प्रोग्राम दूंगा आपको, वो प्रोग्राम करना है आपको, ओके? और रिजल्ट कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. तो रिजल्ट लिखना है ऐसे, the addition of two 8-bit numbers, that is 05H and 05H is 0A in AL register in AL register। और यहां पे लिखोगे आप AL is equal to 0AH, ऐसे। समझ में आया? Yes. दिख रहा है रिजल्ट का फॉर्मेट मैंने कैसे लिखा है? दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. अब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। दो इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे होगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, राइट? तो 02H and 03H
Now you have to add these two 8-bit numbers with each other using कौन सा immediate, using कौन सा एड्रेसिंग मोड आप यूज करोगे यहाँ पे? Immediate addressing mode. हाँ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड करो। और हर एक ने मुझे स्क्रीन ऑन करके आपका जो भी आपने लिखा है प्रोग्राम वो दिखाओगे, राइट? अब बाद में मैं बोलूंगा आपको इस फॉर्मेट में उस प्रोग्राम को कैसे लिखना है। राइट इट डाउन फास्ट। हो गया सभी का? चलो दिखाओ एक एक। नवनाथ, नवनाथ, यस सर। टाइम बहुत कम है। सर मुझे नहीं आया सर उसका आंसर। क्यों नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही है? सर वो वही नहीं पता सर वो कैसे करना है, क्योंकि वो खाली एडिशन कर सकता सर, पर वो पता नहीं ना एडिशन कैसे। नहीं, एडिशन नहीं, जो दो इंस्ट्रक्शन मैंने सामने लिखी है ना वही इंस्ट्रक्शन लिखनी है, वही इंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये देखो, ये एक, ये दो और ये तीन लाइन का ही प्रोग्राम है। तो क्या करोगे आप? सिर्फ ALYC खाली वो लिखने का, खाली वैल्यू चेंज करने की। खाली वैल्यू चेंज करनी की यहाँ पे। ऐसा है क्या सर? वो मेरे को पता ही नहीं था। लिखो। चलो पूजा, जयश्री, जयेश, आकांक्षा, राधा, स्क्रीन ऑन करो बेटा, चलो जल्दी जल्दी। सीधा करो बेटा, सीधा सीधा सीधा। राइट राइट, थोड़ा जूम करो। हाँ एक सेकेंड ना, मैं देख रहा हूं अभी, एक सेकेंड। हाँ क्या लिखा? मूव AL कॉमा 0 to H है शायद, राइट? 0 to H इज Yes, sir. मूविंग टू द कंटेंट ऑफ AL, करेक्ट। दूसरा क्या इंस्ट्रक्शन है दिखाओ मुझे? एड AL कॉमा 03H, right? 03H added into the content of AL, result will be in AL, right? Next, HLT, इसका मीनिंग लिखो स्टॉप, इसका मीनिंग लिखना है स्टॉप, Okay, sir. राइट? और रिजल्ट कैसे लिखा? द एडिशन ऑफ टू 8-bit numbers, यस, एडिशन ऑफ टू 8-bit numbers। आगे दिखाओ। 02H and 03H is 05H in AL। और आगे लिखा है मैंने, जैसे लिखा AL इज इक्वल टू, नीचे नीचे AL इज इक्वल टू, ऐसे नीचे 05H. 05H। ओके, सो दैट इज द आंसर। करेक्ट, करेक्ट आकांक्षा, करेक्ट ऑफ योर स्क्रीन। नेक्स्ट, हु इज देयर? राधा,
श्रेया, सूरज, साई प्रसाद, साइली, जयश्री, फास्ट. A little bit, the image is blur, Shreya. Yes. AL is equal to 0 to, right? AL, 0 to, यहाँ पे ऐड आ रहा है. सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, दिखाओ मुझे. ADD, AL, 03H, right? HLT stop, the addition of, okay, correct. Correct. Next one. Next one. Yes. ओमकार, श्रद्धा, नवनाथ, दिखाओ सर मैं. पूजा, जयश्री, अनिकेत, साहिल. Yes, Navnath. Screen is blur. And put it as a straight. यस सर दिखा रहा सर. रुको. Put your camera as a straight in the format. Okay, so make it correct. Make it correct. Make it straight. नवनाथ. यस सर. Make it straight. सीधा करो उसको. कैमरा सीधा पकड़ो. ऐसे नहीं, उल्टा दिख रहा है अभी. एक मिनट सर. Yes. Next, who is there? दिखाओ मुझे. नेक्स्ट. श्रद्धा. श्रद्धा. राधा, श्रद्धा. Yes, Saili. Yes. It's quite blur. Put your camera steady. Do not move your camera. Just take it as steady. Yes, who is there next? Shraddha, Pooja, Jayashree, Radha. Jayashree, Pooja, Radha. आप तीनों का अभी भी नहीं मुझे आंसर आया है. यस पूजा. It is quite blur, but now you can read the instruction that you are written. So move AL, 0 to 8. Yes, correct. 0 to 8 is moved into the content of AL. Yes, correct. Then add AL, 038. Correct. 038 into the content of AL. Okay, correct. If in AL, HLT stop. Yes. Then result the addition of two 8-bit numbers, that is 0 to 8 and 03H is 05H in AL register. AL is equal to 05H. Okay, correct. Next one, who is there? Radha? Am I audible? Yes sir, audible sir. So why Radha is not going to answer me? सर. Yes. सर मेरे किया नहीं. क्यों? सर मेरी तबीयत बरोबर नहीं है सर, इसलिए. 3 लाइन लिखना है राधा. सर मुझे समझ भी नहीं आया. समझने में नहीं आया. ओके, जयश्री. जयश्री. एक मिनिट फक्त. Do not take a lot of time to complete that 3 lines only. There are only 3 lines. And you just have to put the 3 lines and the meaning of that particular line.
दैट्स इट। यस ओमकार। यस जयश्री। एक मिनट। Yes, Jayashree, it is not visible to me. Hold your camera properly. यस सर, दिख रहा है क्या सर? No. Hold your camera properly in front of your notebook. Yes, it is blur. सर Now अभी you can read the sentences, read the instruction that you are written. Read the sentences just that you are written. ओके सर। Yes, Shraddha. Now you want to show me? Yes. Yes. Move AL comma 02, add AL comma 02, HLT stop, right, move। अब यहाँ पे आपने मीनिंग भी ऐसे क्यों लिखा है उसका? पूरे लाइन लिखना है यहाँ पे। 02 is moved into the content of AL, 03 है यहाँ पे, 02 नहीं है, फिर से राइट। 03 02 में ऐड होने वाला है, तो 02 is added with the content of AL and then we will have HLT instruction that is stop. Okay, करेक्शन कहाँ करना है श्रद्धा, समझ में आया? श्रद्धा, am I audible? करेक्शन करो और करेक्शन करने के बाद फिर से दिखाओ। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अनिकेत। अनिकेत। यस सर। ऋतिक, साई प्रसाद, still you are remaining. ओमकार, you are also remaining. नवनाथ, you are also। सर मैंने दिखाया था ना। तो दिखाई नहीं ना। उल्टा सीधा कैमरा पकड़ रहे थे ना, तो दिखाई नहीं दिया। जयेश। ओके, लगभग सभी ने उसको ट्राई किया है और 80% लोगों को, या हम बोल सकते हैं कि 90% जो भी प्रेजेंट है उनमें से 90% लोगों को वो लिखने आया है। तो सवाल आता है जिनको समझा नहीं है, तो फ्रैंकली अभी बोलो मुझे कि किसी को समझा, किस को समझा नहीं है? सर मुझे। राधा एक, और कोई है दूसरा? यस ऋतिक। ओके, और कोई दूसरा? जयेश। ओके, 3। और कोई है? अनिकेत। ओके। अब ना मेरी तरफ ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 लाइन का प्रोग्राम होता है, और ये 3 और 4 लाइन के प्रोग्राम में हमें इंस्ट्रक्शंस यूज करनी पड़ती है, और वो इंस्ट्रक्शन के साथ हमें ऑपरेंड्स को देना जरूरी होता है। तो ऑपरेंड कैसे स्पेसिफाई करना है वो हमें एड्रेसिंग मोड बताएगा, राइट। तो हम यूज कर रहे हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे एक रजिस्टर हम यूज करेंगे और उसी रजिस्टर में डायरेक्टली दूसरा नंबर ऐड करेंगे। दैट इज द मोटो, और वी कैन से द बेसिक ऑफ द प्रोग्राम। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 2 इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। आपके इंस्ट्रक्शन सेट में 2 इंस्ट्रक्शंस है, मूव और ऐड, राइट। ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमें यूज करनी है, और मूव इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करनी है और ऐड कैसे यूज करनी है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है, और उसी सिंटैक्स के साथ उसको यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको मूव का सिंटैक्स बोलूंगा, राइट। ये मूव इंस्ट्रक्शन है, मूव का सिंटैक्स है, यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन और यहाँ पे आता है सोर्स। सर दिख नहीं रहा है सर। हाँ ऊपर हो गया, पेज ऊपर हो गया। ओके,
ये मूव इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन आता है, यहाँ पे सोर्स आता है, राइट। ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन, सोर्स का जो भी वैल्यू है वो डेस्टिनेशन में पुट करने का काम करता है। क्या करेगा, क्या करेगा ऋतिक, सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन में ऐड सोर्स करेगा। का वैल्यू डेस्टिनेशन में पुट करेगा। तो मुझे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन करना क्या है कि मेरे पास दो नंबर है 02H और 03H, ये दो नंबर है, दोनों भी 8 बिट है। ऑफ कोर्स मैं 8 बिट रजिस्टर यूज करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखूंगा और रजिस्टर में यूज करूंगा मान लो AL, राइट। तो AL में मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है पहली, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो मैं पहले 02 पुट करूंगा। तो ये क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है लिखने का, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, राइट। मूव AL, 02H, इसका मीनिंग है कि 02H ट्रांसफर होगा AL में, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन AL विल बी 02H। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इस 02 में मुझे 03 ऐड करना है। तो ऐड के लिए तो मूव इंस्ट्रक्शन नहीं यूज होगी, क्योंकि मूव इंस्ट्रक्शन का काम कौन सा है, सिर्फ सोर्स को उठा के डेस्टिनेशन में पुट करना, राइट। अगर आप फिर से मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो AL की वैल्यू 02 बदल के 03 आएगी, बट हमें वैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ADD AL, 03H। अब क्या होगा, what is the value of AL after this instruction, after the execution of this instruction? What is the value of AL? What is the value of AL? 05H, sir. 05H. 05H. Shraddha, not 02H, 05H after the execution of add instruction. और तीसरा इंस्ट्रक्शन आएगा HLT, जो कि माइक्रोप्रोसेसर को बोलेगा ऑपरेशन स्टॉप करो, क्योंकि खत्म हो गया ना, एडिशन करना था, एडिशन हो गया। तो उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, स्टॉप। तो HLT, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अभी भी किसी को समझा नहीं ऐसे है कोई, यस अभी भी किसी को समझा नहीं है ऐसा कोई है? चलो नेक्स्ट दे रहा हूं एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल करो। 05H and 02H. I want to add 02H into 05H. So what will be the answer and what is the instruction? What are the instructions that you are going to use? Now same, move AL, 05H, add AL, 02H, उसके बाद HLT. So after the execution of this instruction, AL will become 07H. Understood? Yes. अब देखो, इस प्रोग्राम को स्टोर करना है, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएंगे, राइट। तो मैं यहाँ से ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा, ओके। तो आपने भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। कर लिया लाइन ड्रॉ सभी ने? और मैं ये प्रोग्राम हमारे किट के ऊपर स्टोर करना है हमें, तो वहां पे मेमोरी लोकेशंस होगी। माइक्रोप्रोसेसर पे स्टोर करना है तो माइक्रोप्रोसेसर का मेमोरी लोकेशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं मेमोरी लोकेशन कौन सा यूज कर रहा हूँ, C00H। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं C00H, यहाँ पे लिखूंगा C001H, C002H, C003H, C004H, C005H। इतने सारे मेमोरी लोकेशंस यहाँ पे मुझे लगेंगे। लेबल फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं लेबल का कॉलम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ूंगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज की मैंने, मूव। कौन सी यूज की है, मूव यूज की है। मूव
मूव यूज करने के बाद अब यहाँ पे देखो, आपको लेबल के बाद एक और कॉलम ऐड करना है, आप कोड। क्या करना है आपको, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करोगे आप? अपकोड। लेबल के बाद यहाँ पे अपकोड ऐड होगा, OPCODE, अपकोड। अपकोड माने ऑपरेशनल कोड। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मूव यूज किया और यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या है, AL, 05H। ओके, अंडरस्टूड? यस यस सर। हाँ, अब देखो इस इंस्ट्रक्शन को मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख के हमें अपकोड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहले अपकोड को, इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशनल कोड क्या होंगे। तो आपका अपकोड शीट आपके पास है? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अब देखना है इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज किया गया है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड दिए हैं, तो ऑपरेंड में से डेस्टिनेशन कौन सा है और सोर्स कौन सा है, ये कौन बताएगा? सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है, कौन बताएगा? सर यस आकांक्षा। सर 05H वो सोर्स है और AL डेस्टिनेशन है और ये तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि 05H जो डायरेक्ट नंबर है वो मैं स्टोर कर रहा हूं किसके साथ, हमारे कंटेंट ऑफ AL के साथ। ओके, तो अब देखोगे कि आपको कोड शीट पे आपको इंस्ट्रक्शन के कॉलम के नीचे मूव इंस्ट्रक्शन दिख रही है, राइट? दिख रहा है इंस्ट्रक्शन? यस सर। हाँ, तो अब Yes, इस sir. मूव इंस्ट्रक्शन को सिर्फ जो मूव इंस्ट्रक्शन का रो है ना उसी को कंसीडर करना है, क्योंकि उसके बाद आ रहा है ऐड इंस्ट्रक्शन। दैट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज आफ्टरवर्ड्स। ओके, बट नाउ वी आर ओनली कंसीडरिंग मूव इंस्ट्रक्शन, राइट? सो मूव। अब देखो सोर्स का एक एरो इधर जा रहा है लेफ्ट राइट हैंड को, और डेस्टिनेशन का एरो डाउनवर्ड को है, बराबर है ना? यस सर। और एड्रेसिंग मोड कौन सा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। कौन सा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट का ही कॉलम देखोगे आप, सिर्फ सोर्स इमीडिएट है, इमीडिएट का कॉलम देखना है। इमीडिएट, इमीडिएट के कॉलम में और डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है। डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, रजिस्टर। रजिस्टर आ रहा है। तो एक रजिस्टर पे आपका उंगली एक डेस्टिनेशन पे होगा और दूसरा उंगली सोर्स के ऊपर होगा। उंगली रखो ऐसे, डेस्टिनेशन के ऊपर एक उंगली रखना है, सोर्स के ऊपर दूसरे हाथ का उंगली रखना है। और सोर्स जहां से डायरेक्शन दिखा रहा है वो 3 कॉलम में से आपका एड्रेसिंग मोड कौन सा है? इमीडिएट। तो इमीडिएट तक आपका जो सोर्स वाला उंगली है वो आप उसको ड्रैग करोगे। ड्रैग किया? राइट? अब डेस्टिनेशन में रजिस्टर है, डेस्टिनेशन में रजिस्टर है, तो रजिस्टर तक उंगली ड्रैग करो। दोनों आपकी जो डेस्टिनेशन वाली उंगली है रजिस्टर तक ड्रैग करो। अब देखो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी दोनों उंगलियां आ गई है, आ गई है। यस सर। और इस अभी क्या करना है, उंगलियों को ऐसे नजदीक लाना है कि वो इंटरसेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। कहां पे इंटरसेक्ट हुआ है? कहां पे इंटरसेक्ट हुआ? दोनों उंगली एक साथ टच कहां पे हो रही है ड्रैग करने के बाद? B0/B8 प्लस रजिस्टर
comma data. Yes. This is the opcode that now you are going to use for your first instruction. What is it? This is the opcode that now you want to, or that you are going to use into your program. So that is B0/B8 plus register comma data. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Now this B0 is used for 8-bit and this B8 is used for 16-bit data. 16-bit register. Now we are going to use 8-bit. So what we are going to pick from here? B0. Only B0 you have to pick up. Only B0 you have to pick up. So I just picked out B0 plus रजिस्टर. कौन सा यूज हुआ है रजिस्टर? AL. तो यहाँ पे सिर्फ मैं पहले AL लिखूंगा कि ताकि आपको समझे. उसके बाद डेटा क्या है हमारा? 05. ओके. सो अब देखो इन दोनों का एडिशन करना है. तो फर्स्ट पेज पे आओ. AL की वैल्यू देखो क्या है? 0. क्या है? 0. तो B0 प्लस AL की जो 0 वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में लेनी है. तो 0 को हेक्साडेसिमल में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 0. तो B0 plus 0, that is B0, and again we have 05 as it is. So code will become B005. तो यहां पे लिखो B005. क्या लिखोगे आप? B005. तो मूव इंस्ट्रक्शन समझो, मान लो कि ये 8-बिट वाला है. ये जो लोकेशन है वो 8-बिट का है, ये लोकेशन 8-बिट का है. तो 2 बाइट यहाँ पे यूज करता है स्टोर होने के लिए. क्या यूज करता है? मेमोरी लोकेशन में से 2 बाइट यहाँ पे यूज हो चुके हैं. 2 8-बिट C000 पे और C001 पे ये एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी. अब दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? ADD AL, 02H. राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? Yes, Yes, sir. sir. अब ऐड का भी उसी तरीके से देखना है. अब मूव का जो रो है पूरा वो छोड़ देना है, ऐड के रो में आना है. अब यहां पे फाइंड आउट करो सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है. सोर्स क्या है? 02. That is immediate. So you have to put the particular finger on immediate column. And what is the destination? That is register. So you have to put your next finger onto your register, right? And drag both fingers in such a way that intersect with each other, right? तो कहां पे ऐड हो रहा है वो? इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है? 80/81, C0 plus register, data. Right. So 80 दिखा है, सभी को दिख रहा है? 81 C0 प्लस रजिस्टर डेटा. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो ये 8-बिट के लिए, ये 16-बिट के लिए. हमारे पास कितना बिट डेटा है? 8-bit. तो हम क्या यूज करेंगे? 80. तो 80 C0 प्लस रजिस्टर कौन सा यूज किया? AL. डेटा क्या है? 02. ओके. सो 80 प्लस C0, AL की वैल्यू 05H. नो, AL की वैल्यू, जब भी AL की वैल्यू बोलो तो फर्स्ट पेज पे जाके, राइट. तो यहाँ पे आएगा 02H. सो 80 इसका एडिशन आएगा C0 और ये आगे का एज इट इज C02H.
तो ये 80C002 ये निकला हमारा अप कोड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80C0 और यहाँ पे आ गया 02। ओके, और इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कौन सा? HLT। इसके कोई ऑपरेंड नहीं होता और इसका अप कोड होता है F4। ये हमेशा याद करके रखना है, ये हमेशा याद करके रखना है। तो अब यहाँ पे कमेंट क्या लिखोगे? 05H moved into content of AL। यहाँ पे आप लिखोगे 02H added into AL result in AL, और यहाँ पे आएगा स्टॉप। मेरे पास जगह कम है, आप अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप रिजल्ट AL इज इक्वल टू 07H। यस, लिहिलं का सगळ्यांनी व्यवस्थित? यस सर. Now can you show me, Akanksha? Yes sir. Can you show me the table that you are written? Yes sir. Yes, थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा जूम करो, नीचे नीचे नीचे। यस, ओके। अपकोड जो निकाले हैं ना वो दिखाओ मुझे एक बार। अपकोड्स जो है B0 है फर्स्ट, B0 05 80 C0 02 F4। yes, it is correct. And now whatever the upcode that you are find it out with the help of your instruction set upcode sheet, that only you have to use to find out the result. ये बाकी कुछ भी आपके माइक्रोप्रोसेसर के किट के ऊपर स्टोर नहीं होगा, सिर्फ ये अपकोड्स आपको उठाने हैं और उसी को प्लेस करना है इन मेमोरी लोकेशंस पे, राइट। और उसका एक अलग तरीका होगा एग्जीक्यूशन का, वो किट के ऊपर आपको मैं समझाऊंगा बाद में। ओके, तो आप फर्स्ट असाइनमेंट लिखोगे आपका और वो मुझे सबमिट करोगे कल। सभी ने मुझे दिखाना है, रिकॉर्ड बुक में लिखना है, राइट। तो फर्स्ट असाइनमेंट आज की डेट में यही होगा आपके लिए। कौन सा? राइट एन ALP टू ऐड 2 8-bit नंबर्स यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, फॉर्मेट भी यही होगा, फॉर्मेट इसी तरीके से ड्रॉ करना है, इसी तरीके से लिखना है, और इसी के साथ आपको इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों भी बनाने हैं। आप बना सकते हो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट? यस, यस, सर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं कल बताऊंगा। ओके, ओके सर। अब किसी को दिक्कत है वो अपकोड फाइंड आउट करने में, किसी को दिक्कत आई? सर हमने जो अपकोड फाइंड किया है, जो प्रोसेस हमने लिखी है, वो भी प्रैक्टिकल में लिखना है सर? नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल में नहीं लिखना है, सिर्फ अपकोड फाइंड आउट जो किए हैं वो करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ऑल द एग्जीक्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन योर अपकोड्स दैट यू आर फाइंड इट आउट। ओके, सो अगर अपकोड गलत हुए तो रिजल्ट भी गलत आएगा। ओके सर। और अपकोड कब गलत नहीं होंगे? जब आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर उसका लिखोगे तब जाके आपको प्रॉपर अपकोड मिलेंगे। ओके, यस सर। हाँ, तो अब हो गया ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। कल जो हम पढ़ेंगे वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, और मैं अब पूरा ये फॉर्मेट आपको फिर से नहीं बताने वाला, सिर्फ कल हम प्रैक्टिस करेंगे कि अपकोड्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, राइट। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपने उसके अपकोड्स फाइंड आउट करके मुझे दिखाने हैं अभी। ओके,
तो लिखो इंस्ट्रक्शन मूव BL कॉमा move BL comma 01H. Find the opcode as early as possible and show me. And if you are not able to find out the opcode, then we will see that particular part into your next practical. बट आपको अभी आना चाहिए, मैंने अभी बोला है आपको पूरी चीजें। तो प्रैक्टिकली आप जब वो उंगलियों को ड्रैग करोगे तो जहां पे आपकी इंटरसेक्ट होती है उंगली, वहां पे आपका अपकोड होता है। तो ये इजी वे है जो मैंने बताया आपको कि अपकोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ अपकोड फाइंड आउट करने के लिए यही चीजें हैं कि सिंपल डेस्टिनेशन और सोर्स आपकी इंस्ट्रक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और जब आप डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करते हो और सोर्स आइडेंटिफाई करते हो तो आपका अपकोड आपके सामने विजिबल हो जाता है, जैसे आप उसको देख पा रहे हो आपके इंस्ट्रक्शन सेट में या अपकोड शीट में। तो फाइंड कर लिया अपकोड। आकांक्षा शो मी। आपने BL का वैल्यू क्या लिया? 011। ये 011 ऐसे नहीं लेते बेटा, 011 दैट यू हैव टू पुट इनटू अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। 011 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या है? 011 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है? पहले पेज पे देखो अपकोड शीट के, वहां पे दिया होगा। सर 3। हाँ, तो लिखो B3, B0 प्लस 03 दैट विल बिकम B3। वो 11 नहीं लिखना बाद में। 11 क्यों लिख रहे हो? हाँ, करके 3 1H है, वो 1H है। राइट 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 राइट, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके सर। दूसरा कोई है जिसने फाइंड आउट किया? यस, श्रद्धा। श्रद्धा, ये तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी बड़े बड़े भी इंस्ट्रक्शन आएंगे तो इतना टाइम नहीं देना है इसको, बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी आपको निकालना ही है। अब कई बार पूछा जाता है आपको कि मूव ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है। तो आप अगर प्रोग्राम देख पा रहे हो तो मूव इंस्ट्रक्शन फॉर्म होती है ये 2 मेमोरी लोकेशन यूज करते हुए, और एक मेमोरी लोकेशन 8 बीट का होता है, माने 1 बाइट का। तो यहाँ पे 2 बाइट ऑक्युपाई किया है मूव इंस्ट्रक्शन। सो मूव इंस्ट्रक्शन इज हाउ मच बाइट ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन? 16 बाइट। 2 बाइट, 16 बीट, नॉट बाइट। ओनली 2 बाइट इज यूज्ड टू स्टोर मूव इंस्ट्रक्शन। तो मूव इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है। वैसे ऐड इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? कितने बाइट का है? 24।
Akanksha, 24 is, we are going to consider this is a beat, but byte is a combination of 8 beat. So one combination of 8 bit is called as 1 byte. Second 8 bit combination is called as 2 byte. Or third 8-bit combination is called as a 3 byte. So how many bytes are used to store add instruction? 3 bytes. Yes, correct. So likewise that move instruction is used for only 2 bytes. और HLT is going to use only 1 byte. तो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, अलग अलग स्टोरेज यूज करते हैं. तो जितना भी स्टोरेज वो यूज करते हैं स्टोर होने के लिए, उसके ऊपर उसका टाइप डिपेंड ऑन होता है. जैसे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 4 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. डिफिकल्ट किसे लग रहा है? फ्रैंकली बोलो, डिफिकल्ट किसे लग रहा है? दूसरा इंस्ट्रक्शन दूं? यस सर. दूसरा इंस्ट्रक्शन दूं? यस सर. हाँ चलो लिखो. मूव CL, 0 to H. अब कौन दिखाएगा? नवनाथ दिखाएगा अभी. ओके? सर मुझे नहीं आता सर. आना ही पड़ेगा. सर मैंने वो चार्ट का जो फोटो नहीं निकाला ना सर, इस वास्ते कंफ्यूज हो रहा सर. क्यों नहीं निकाला? सर मैं अभी कल निकालूंगा सर, बाद में पूछूंगा सर आपसे कैसे करना है वो. तो इसी में ठीक है टाइम सर. लगा है अपना बेटा. आकांक्षा, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. ओके सर. जयश्री, यस सर. शो मी योर आंसर. सर माझा पण तोच प्रॉब्लेम आहे, ते मी चॅट याने केलंय ना, तर मला समजत नाही थोडं थोडं. साई प्रसाद, साई प्रसाद, यस सर. शो मी योर आंसर. सर चार्ट है कल नहीं. तो मैंने पहले पूछा था आपको कि आपने आपको शीट निकाला है नहीं निकाला, तो बोले आप सभी ने निकाला है. श्रेया, श्रेया, येस सर. शो मी योर आंसर. सर काढतीये सर 2 मिनिटं. सूरज, राधा, I think Radha is not present now. क्यों कम हो रहे हैं? सर आपने वो पूछा नहीं सर आंसर. तो उसकी वजह से कम हो गए. सर तो आंसर तो पूछना पड़ेगा. अगर लेक्चर में रहोगे मेरे तो क्या करोगे? आप हिल भी नहीं सकते. शीट का सर प्रिंट नहीं निकाले सर, इस वास्ते वो आ रहा है नहीं सर आंसर. नहीं नहीं, अगर फिजिकल क्लासरूम में आप बैठे होते तो मेरे लेक्चर में आप हिल भी नहीं सकते.
ये आपका गुड लक है कि आप अभी फिजिकल क्लासरूम में नहीं हो, नहीं तो मैं ऐसे हाथ पकड़ के सभी को निकालना, कैसे निकालना है वो बताता हूँ। यस आकांक्षा बोलो बेटा, क्या आपका आंसर क्या आ चुका है? B1,02H। यस, कैसे निकाला उसको? कैसे निकाला उसको? सब मूव का हमने जो कॉलम था उसको लिया और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था तो उसमें हाँ निकला था B0/B8 प्लस रजिस्टर कॉमा डेटा। तो हम लोग हाँ का 8 बिट का था मेमोरी लोकेशन, तो हमने B0 लिया प्लस यस CL, हाँ रजिस्टर CL था और डेटा 02H था। तो हाँ CL जो निकाला तो वो 001 आ रहा था और डेसिमल में करेंगे तो 1 आता है आंसर। तो डेसिमल। B0+1,02H और आंसर आता है B1,02H। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, गुड। थैंक यू सर। ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है हर एक इंस्ट्रक्शन का आपको निकालते समय। Now everyone is cleared about that, I think. If it is not clear, then we will take it again into the next practical. But before that, you must have a printout with you, यस सर। right? Yes, sir. So if you don't have a printout, then you cannot calculate the calculate the upcodes, because we have to sometimes physically take some things to understand, राइट? मोबाइल के ऊपर या आप लैपटॉप के ऊपर उसको यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट समटाइम्स फिजिबल। ओके, अब जब किसी के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है प्रिंट आउट निकालने की तो हो सकता है ऐसे कि वो उसको मोबाइल पे यूज करे या लैपटॉप पे यूज करे, राइट? बट ये कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सभी ने, मैंने जो आपको गाइडलाइन दी है उसी को याद रखना है। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे उसका तो आप उसको 8-9 घंटे तक हाथ नहीं लगाओगे और किसी के हाथ में आए ऐसे नहीं रखोगे। आने के बाद हाथ अच्छी तरीके से साबुन से या Yes, हैंड sir. से क्लियर करना है, पूरा क्लीन करना है। जाते समय मास्क पहनना है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आप बड़े हो अभी, ओके? यस सर। हाँ, तो ऐसा ना हो जाए कि प्रिंट आउट निकालने के बहाने आप बाहर गए, आपके पास मास्क नहीं है, आप कहीं कंटेमिनेटेड हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। आपके पास मास्क होना चाहिए, आपने 2 गज दूरी बनाई रखनी चाहिए, दैट इज द सोशल डिस्टेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद द सोशल लाइफ, ओके? यस सर। यस सर। हाँ, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ये काम करना है। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Now you can leave the class and try to form instruction up to